Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will disseminate the knowledge about the entitled theme, Guilford's Structure of Intellect. Dear students, Guilford was basically American-born psychologist, जिसका जन्म 1897 में हो चुका और उसकी डेथ 1987 में हो चुकी at the age of 90 years. Guilford has contributed a lot in the field of psychometrics. जैसे कि हम सब जानते हैं, psychometry is basically branch of psychology which deals to study the measurement. यानी कि अगर हमें psychological attributes या हम कह सकते हैं psychological characteristics measure करने हैं, we have to follow psychometry, क्योंकि psychometry के बगैर हम कोई भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टर या एट्रीब्यूट मेजर नहीं कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, साइकोमेट्री इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल लॉज एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स. विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स वी मेजर एनी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट like intelligence. World War II के दौरान, I mean to say you, during the World War II, Guilford has assigned the task to design or develop various intelligence tests in order to recruit the person for pilot training. यानी कि इंडिविजुअल्स में पोटेंशियल चेक करना था कि वो पायलट ट्रेनिंग के लिए फिट है कि नहीं. जैसे कि हम सब जानते हैं, एक पायलट में स्पेशल कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए. दैट इज नोन एज स्पेशल इंटेलिजेंस. विदाउट द स्पेशल इंटेलिजेंस, the person cannot become the pilot. Special intelligence is that intelligence, या हम कह सकते हैं it is that cognitive ability in which an individual is able to operate the ideas in the space. Dear students, keeping in view the Guilford's contribution in the field of intelligence, he has highly criticized the concept of general ability, जिसे चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया. According to Guilford, with the help of general ability, we cannot perform all types of tasks. हम हर कोई काम जनरल एबिलिटी से नहीं कर सकते हैं, जिसे चार्ल्स स्पेरमैन कहता है जी एबिलिटी या जनरल फैक्टर. अपार्ट फ्रॉम चार्ल्स स्पेरमैन, Guilford has also criticized the another eminent psychologist, namely E.L. Thurston. E.L. थर्स्टन ने जो कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज का कॉन्सेप्ट दिया, गुइलफोर्ड ने उसे भी रिजेक्ट किया. अकॉर्डिंग टू गुइलफोर्ड, विद द हेल्प ऑफ 7 or 9 प्राइमरी एबिलिटीज, एवरी टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म. यानी कि हर कोई काम सिर्फ चंद प्राइमरी एबिलिटीज से हम नहीं कर सकते हैं.
Guilford says, in order to perform the tasks, or simply to find the solution of the problem, there are numerous cognitive abilities which are working together. यानी कि किसी भी वर्ल्ड मैकेनिज्म को समझने के लिए there are number of cognitive abilities which are working together in order to understand phenomena of the world. या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, they are working in networking forum and help us accordingly to find the solution of the problem. Dear students, Guilford finally in 1950, he has given the concept of model, and that model is known as structure of intellect. This model is क्यूब शेप्ड मॉडल. जिस तरह से क्यूब के 3 साइड्स है, सेम इज द केस विद गुलिफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट. इट कंटेन्स 3 डायमेंशंस, यानी कि इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशंस है. एंड ईच एंड एवरी डायमेंशन इज इंटरकनेक्टेड and interlinked to one another in organized and sequential order. Dear students, हम समझने में गलती कर लेते हैं. मैंने अपनी लेवल पे ऑब्जर्व किया है, लर्नर जो है वो इस मॉडल को रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करते हैं. अक्सर बेशतर लर्नर्स लिखते हैं पहले ऑपरेशंस, उसके बाद कंटेंट और लास्ट में प्रोडक्ट. इट इज रॉन्ग टू प्रेजेंट द मॉडल लाइक दैट. देन व्हाट इज द राइट ऑर्डर? इस मॉडल को समझने के लिए फिर राइट ऑर्डर क्या है, राइट सीक्वेंस क्या है? कीपिंग इन व्यू द गुलिफोर्ड्स 3-dimensional model, which is also known as cube shaped model. इसमें 3 डायमेंशंस है. फर्स्ट कंटेंट, सेकंड ऑपरेशन एंड थर्ड प्रोडक्ट्स. पहले कभी भी ऑपरेशंस नहीं आएगा. फर्स्ट कम्स कंटेंट. आफ्टर द कंटेंट डायमेंशन देयर कम्स द ऑपरेशन डायमेंशन. And after the operation dimension, there comes last dimension, which is known as product dimension. Dear students, now we will give the detailed account of the 3-dimensional model, which is discussed by Guilford, जिसे J.P. Guilford के नाम से भी जाना जाता है. Full form is Joy Paul Guilford. Dear students, जब गुलिफोर्ड ने 3-dimensional मॉडल को फर्स्ट टाइम दिया, at that time he has given concept of 120 cognitive abilities. यानी कि एक इंडिविजुअल 120 cognitive abilities का इस्तेमाल कर सकता है. 120 means 4 contents, 5 operations and 6 products. It means 4 into 5 into 6 is equal to 120. लेकिन गुलिफोर्ड ने इस 3-dimensional मॉडल को फिर मॉडिफाई किया. After the modification, Guilford has given the concept of 150 cognitive abilities, which includes 5 contents, 5 operations and 6 products. It means 5 into 5 into 6 is equal to 150. Then after once again
Guilford has redesigned, remodified the model. तो लेटेस्ट मॉडल जो आज का है, it contains 180 cognitive abilities. It means 5 contents, 6 operations, and 6 products. 5 into 6 into 6 is equal to 180. As per the J.P. Guilford, जो इंडिविजुअल 180 एबिलिटीज को यूज करता है, we can call the individual gifted कम क्रिएटिव. उस बच्चे में गिफ्टेड कम क्रिएटिव पोटेंशियल है, क्योंकि जो 180 कॉग्निटिव एबिलिटीज है, it includes specially 2 dominant abilities. One is known as convergent mode of thinking, and as we know that convergent mode of thinking is related to giftedness. और गिफ्टेड उन बच्चों को कहते हैं who possesses IQ range 140 above. And second, divergent mode of thinking. Divergent mode of thinking is related to creativity. इस तरह से हम इस मॉडल को समझ सकते हैं. यहां पर आपके स्लाइड पे डायग्राम भी दिखाई गई है. How Guilford's model contains 180 cognitive abilities. Now, dear students, we will discuss the all 3 dimensions one by one. Number 1, content dimension. कंटेंट डायमेंशन को इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स भी कहा जाता है. नाउ व्हाट इज कंटेंट? डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन और मटेरियल ऑन विच वी परफॉर्म सर्टेन कॉग्निटिव ऑपरेशंस. यानी कि कंटेंट वो मटेरियल है या इंफॉर्मेशन है जिस पे हम कॉग्निटिव ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. अगर कंटेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गुइलफोर्ड, तो हम कॉग्निटिव ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. इसीलिए 3 डायमेंशनल मॉडल को समझने के लिए पहला डायमेंशन जो है दैट इज कंटेंट डायमेंशन. नटशल में हम कह सकते हैं कंटेंट इज बेसिकली नथिंग. It is information, it is material, where an individual performs certain cognitive operations, and due to various cognitive operations, it leads towards the end result in the form of products. Dear students, there are 5 broad contents involved in the SOI model, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं. नंबर 1, विजुअल कंटेंट. विजुअल कंटेंट इज दैट इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ साइट. जैसे कि हम सब जानते हैं, senses are called the gateways of knowledge. यानी कि we receive every bit of knowledge with the help of senses. यानी कि सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन सेंस ऑफ साइट है. कीपिंग इन व्यू द साइंटिफिक फैक्ट्स, हमारी आई में एक स्पेशल पार्ट है दैट इज नोन एज रेटिना. रेटिना का जो काम है, इट मेक्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द माइंड. क्योंकि माइंड में ऑलरेडी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कहते हैं वीडियोट्री सिस्टम. अगर हम देखते हैं किसी पिक्चर को, किसी फोटोग्राफ को, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन एज
वीडियोटरी सिस्टम, और वो सिस्टम हमारे माइंड में है। जब किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके दिमाग का वीडियोटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो वो पर्सन देखने की सलाहियत नहीं रखता है। इसीलिए विजन के लिए वीडियोटरी सिस्टम का होना जरूरी है, विच एग्जिस्ट्स इन आवर माइंड। अगर हम डिफरेंट एंटिटीज देख पाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल, कोई प्लांट, इट इज बिकॉज ऑफ द विजन, यानी कि कंटेंट हम रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। हम बच्चे को डॉग की पिक्चर दिखाते हैं तो वो परसीव करता है और अकॉर्डिंगली उस पिक्चर पे अपना कॉग्निटिव ऑपरेशन करता है, एंड देन आफ्टर अकॉर्डिंगली लेबल, दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉग, दिस इज द पिक्चर ऑफ हॉर्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ मंकी एंड डोंकी। इस तरह से जो कंटेंट है वो हम रिसीव करते हैं विजन की सूरत में। नंबर सेकंड, ऑडिटरी। डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटरी कंटेंट is that content in which we receive the information in the form of sounds, यानी कि जब हम साउंड्स के जरिए कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, दैट इज नोन एज ऑडिटरी कंटेंट। यानी कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग। जिस तरह से सेंस ऑफ साइट है, उसी तरह से दूसरी सेंस ऑफ ऑर्गन है, दैट इज नोन एज सेंस ऑफ हियरिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सेंसेस आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ नॉलेज। एज पर द गुलिफोर्ड्स मॉडल, कंटेंट ऑडिटरी फॉर्म में भी है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स चिर्पिंग। जब जानवर चहचहाते हैं तो हम कहते हैं उस वक्त बर्ड्स आर चिर्पिंग, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग से। लाइकवाइज जिस तरह से वीडियोटरी सिस्टम हमारे माइंड में होता है, उसी तरह से हमारे माइंड में, आई मीन टू से यू ब्रेन में, ऑडिटरी सिस्टम भी होता है। अगर किसी व्यक्ति का ऑडिटरी सिस्टम किसी भी सूरत से डैमेज हो जाएगा, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे पर्टिकुलर डिजीज से, तो ऑटोमेटिकली हियरिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है एक इंडिविजुअल में। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा स्पेशल एजुकेशन में, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम ऑडिटरी फॉर्म में भी रिसीव करते हैं और हम डिफरेंट कॉग्निटिव ऑपरेशंस करते हैं इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। व्हेन डॉग इज बार्किंग, तो हम नहीं कहते हैं कि इट इज द बेलो अ बुल। जब कोई और जानवर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो पर्टिकुलरली उस वक्त हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये किस जानवर की आवाज है, अगर हम फेमिलियर होंगे। हम फर्क जानते हैं, हाउ बम ब्लास्ट साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द टायर ब्लास्ट। हम फर्क जानते हैं डिफरेंट म्यूजिक्स के साउंड्स में से। सो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम दैट इज नोन एज ऑडिटरी सिस्टम, इट मीन्स नटशल में हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करना, या हम कह सकते हैं कंटेंट जो होता है वो ऑडिटरी फॉर्म में भी होता है। नंबर थर्ड, symbolic. Dear students, our brain has also capacity to receive the information in the form of symbols. Symbols means letters, alphabets, shapes, musical and scientific notations. हम एक बच्चे को डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाते हैं, तो वो बच्चा जो है वो उन
ज्योमेट्रिकल शेप्स पे अपने कॉग्निटिव ऑपरेशंस परफॉर्म करता है in order to draw the end results in the form of products. Like बच्चा कहता है ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इट इज सर्कल, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इट इज ट्रायंगल, और वो वाली ज्योमेट्रिकल शेप जो है इट इज पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिसीव करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हमारे ब्रेन के 3 डायमेंशंस है। आई मीन टू से यू इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशंस है। एक डायमेंशन को कहते हैं कंटेंट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन को कहते हैं ऑपरेशन डायमेंशन, और थर्ड डायमेंशन को कहते हैं प्रोडक्ट डायमेंशन। और इस कंटेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिसीव करते हैं, लाइक डेंजर की साइन, या मैथमेटिक्स में हम देखते हैं एडिशन की साइन, सब्ट्रैक्शन की साइन, डिवाइड की साइन, डिवीजन की साइन। सो दीज आर द वेरियस साइंस बाय विच वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग्स। सो इसे कहते हैं सिंबॉलिक कंटेंट। Fourth is semantic. Dear students, semantic is that very information which is received in the form of words, sentences, phrases, idioms, signs, etc. यानी कि डिफरेंट वर्ड्स से, डिफरेंट सेंटेंसेस से या डिफरेंट फ्रेजेस से हम किस तरीके से डिफरेंट मीनिंग्स निकालते हैं, क्योंकि सिमेंटिक इज दैट वेरी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज रिलेटेड टू द मीनिंग्स। अगर हमें डिफरेंट मीनिंग्स ढूंढनी है, सो वी हैव टू फॉलो और वी हैव टू लुक थ्रू द प्रिज्म ऑफ सिमेंटिक्स, लाइक डेस्टिनेशन एंड लास्ट स्टॉप। टेक्निकली इट कंटेन्स और इट सीम्स टू अस सेम थिंग, लेकिन जब हम सिमेंटिक्स के प्रिज्म से देखते हैं इट गिव्स डिफरेंट मीनिंग, लाइक इट इज कॉल्ड डेथ। यानी कि जैसे कि हम आम फाम लफ्जों में कहते हैं कि उसकी जिंदगी पे फुल स्टॉप लग गया। डियर स्टूडेंट्स, वी कॉल शुगर इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, क्योंकि हमने शुगर का टेस्ट लिया, इसीलिए ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस वी कॉल शुगर इज स्वीट इन टेस्ट। लेकिन जब हम सिमेंटिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम स्वीट को डिफरेंट एंगल्स से डिस्क्राइब करते हैं। कभी कभार हम कहते हैं दिस मैन इज स्वीट लाइक ए शुगर। डज इट मीन जिस तरह से हमने शुगर का टेस्ट लिया है उसी तरह से इस आदमी का भी लिया है? नो। एक्चुअली सिमेंटिक्स में हम इस इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है हाउ मच प्लेजेंट एंड नाइस गुड ही इज, किस तरह से ये प्लेजेंट है, नाइस पर्सन है, नाइस गाय है। तो सिमेंटिक्स के पर्सपेक्टिव से इट इन्फर्स द वेरियस मीनिंग्स। इसी तरह से अगर हम फ्रेजेस और इडियम्स की बात करेंगे, ही हैज़ किक्ड द बकेट, ऐसे हमें लगता है कि उसने बकेट को लात मारी है, लेकिन जब हम इसे सिमेंटिक्स के प्रिज्म से देखते हैं इट कनोट्स डिफरेंट मीनिंग, लाइक उसकी मौत यस्टरडे को हो चुकी, क्योंकि फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives incomplete sense and meaning. Dear students, it is raining cats and dogs. It does not mean बारिश जो है वो कुत्तों और बिल्लियों पे पड़ती है, लेकिन जब आप सिमेंटिक्स के प्रिज्म से देखोगे इट मीन्स बारिश घमासान की हो रही है। इसी तरह से डोंट ट्राई टू बिकम कंटेंशन इन बून, जब आप सिमेंटिक्स के प्रिज्म से देखोगे इट मीन्स
फसाद की जड़ मत बनो. So this was the fourth content in the form of semantics, and fifth is behavioral. Dear students, behavioral means information perceived as acts of people such as gestures, facial expressions, body language, etc. यानी कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं गेस्चर्स से, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से. जब कोई पर्सन ग्लूमी होता है, सैड होता है, तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता करते हैं जो ये पर्सन है, ही इज वेरी मच इन द डेप्थ ऑफ ग्रीफ और सैडनेस. और कोई पर्सन बहुत खुश है, वो खुशी उसके चेहरे से, बॉडी से निखरती है, छलकती है. या कोई इंडिविजुअल कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, हाउ द इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग द टास्क, वो अपने बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है. तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं ये किस तरह से इस टास्क को परफॉर्म करता है. सो दिस कंटेंट इज नोन एज behavioral content या intellectual content. Now after the content dimension, we will focus on next dimension, namely operations. यानी कि operation dimension जो है, it is also known as intellectual operations. Now dear students, we will discuss 6 broader intellectual operations. Number 1, cognition. Cognition is the first mental operation. Dear students, cognition simply means an ability of an individual to understand, recognize, comprehend, become aware, and gain knowledge about things. For instance, understanding and knowledge about plants and animals. यानी कि अगर हमें किसी भी कंटेंट को समझना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वी अंडरस्टैंड द थिंग्स, वी अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन विद द रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव ऑपरेशंस. और उन ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ कॉग्निशन है. विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन वी गेट द नॉलेज, और सिंपली वी कंप्रहेंड द थिंग्स. Comprehension simply means understanding and interpretation of anything. For example, हम बच्चे को कोई प्लांट दिखाते हैं, प्लांट इज द कंटेंट, फिर वो उसी कंटेंट पे कॉग्निशन एज ए ऑपरेशन यूज करता है. ये एप्पल ट्री है, मैंगो ट्री है, चेरी ट्री है, या कोई और दरख्त, या एनिमल की पिक्चर दिखाएंगे, डॉग की, हॉर्स की, काऊ की, गोट की, कैट की, एटसेट्रा. इस तरह से हम डिफरेंट कंटेंट्स पे एक कॉग्निटिव ऑपरेशन यूज करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2, मेमोरी ऑफ रिकॉल. मेमोरी ऑफ रिकॉल इज अनदर इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन. व्हाट इज मेमोरी ऑफ रिकॉल? मेमोरी ऑफ रिकॉल इज ऑल्सो नोन एज memory of retrieval. It is basically remembering the information that were previously encoded and stored in the brain. For example, retention of poetry or essay. हम बच्चे से पूछते हैं या बच्चों से पूछते हैं, recall the or recite the essay, my best friend, my best teacher. या किसी एनिमल के बारे में हम उसे कहते हैं रिसाइड द हॉर्स, द काउ. तो हमें उसकी मेमोरी ऑफ रिट्राइवल या मेमोरी ऑफ रिकॉल के बारे में पता चलता है. और हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी मेमोरी ऑफ रिकॉल और मेमोरी ऑफ रिटेंशन है, क्योंकि थर्ड ऑपरेशन जो है दैट इज मेमोरी ऑफ रिटेंशन. मेमोरी ऑफ रिटेंशन मीन्स how an individual has capacity or ability to store the information over the period of time. कितनी एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है एक इंडिविजुअल, या
लर्नर। हम लर्नर से पूछते हैं द काउ यहाँ पर डिस्क्राइब कर लो। कोई लर्नर काउ के रिलेटेड 10 सेंटेंस बता पाता है, कोई लर्नर काउ के रिलेटेड 20 सेंटेंस बता पाता है। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड लर्नर है जिसने 20 सेंटेंस डिस्क्राइब किए उसका रिटेंशन पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट इंडिविजुअल जिसने सिर्फ 10 सेंटेंस डिस्क्राइब किए। कोई ऐसा भी इंडिविजुअल होगा जो 20 सेंटेंस डिस्क्राइब कर सकता है या 20 से भी ज़्यादा, और ऐसे भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनका रिटेंशन पावर बहुत कम होता है जो 1 या 2 सेंटेंस बता पाते हैं। सो इट मीन्स दैट मेमोरी ऑफ रिकॉल एंड रिटेंशन it varies from person to person or individual to individual. Dear students, previously हमने already describe किया USA में एक पर्सन था, जब भी उसे किसी व्हीकल के नंबर के बारे में बताते थे तो वो सिर्फ व्हीकल के नंबर्स नहीं बता पाता था बल्कि व्हीकल कब देखी, कहाँ पर देखी, तो किस हालत में देखी वो भी वो बता पाता था। It means his memory of retention was very much strong. फोन नंबर्स ज़बानी याद रखना, किसी पर्सन में हर एक ऑफिशियल फ़ोन नंबर ज़बानी याद होता है। It means his memory of retention is very much high. उसकी memory of retention बहुत strong है। This was the third mental operation in the form of memory of retention. नंबर 4, डाइवर्जेंट थिंकिंग, या इसे हम डाइवर्जेंट प्रोडक्शन भी कहते हैं। इट इज़ दैट एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। इट इज़ थॉट प्रोसेस और मेथड यूज्ड टू जनरेट creative ideas by exploring many possible solutions. For example, brainstorming. Dear students, गुइलफोर्ड ने अपने मॉडल में, यानी कि जो ये ऑपरेशन है डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग, इट इज़ नोन एज क्रिएटिव एबिलिटी, क्योंकि इसमें एक ही सोल्यूशन हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं बल्कि वी कीप अंडर कंसिडरेशन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, and divergent mode of thinking is related to the creativity. As we know that famous scientist, namely Thomas Alva Edison, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब भी ईजाद किया, एक दिन वो अंडों के ऊपर बैठ गया in order to hatch the eggs. मदर ने उसे कहा what you are doing, तो उसने ब्यूटीफुल आंसर दिया on the basis of creative potential. Mom, I am trying to hatch the eggs. तो मदर ने वापस जवाब दिया, you are not hen or duck, so you cannot hatch the eggs. And he has also given the answer, replied back to the mother, I am bigger than the hen or duck. When hen or duck can hatch the eggs, why not me? मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो डीपली इस प्रॉब्लम के रिलेटेड उसने सोचा इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट मॉड्स से, एंड फाइनली ही हैज़ इन्वेंटेड न्यू थिंग इन द फॉर्म ऑफ हैचिंग मशीन्स। ये सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, किस तरह से एक एग जो है वो चूजे में तब्दील होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग, या इसे हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, भी उसने हैचिंग मशीन ईजाद की। इसी तरह से बहुत से ऐसे क्रिएटिव साइंटिस्ट्स हैं लाइक मार्कोनी जिसने रेडियो इन्वेंट किया, राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया, या थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामाफोन भी ईजाद किया, बिकॉज दीज वर द क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। इन क्रिएटिव इंडिविजुअल्स में डोमिनेंट डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग होती है। कोई बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव होता है। अगर हम उसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सिखाएंगे किस तरह से इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, अब वो क्रिएटिव बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना सिर्फ उस तरीके से जो मेथड हमने उसे सिखाया है, बल्कि वो अल्टरनेटिव मेथड्स यूज करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उस बच्चे में क्रिएटिविटी है।
जो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। नंबर 5, कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग। इसे कन्वर्जेंट प्रोडक्शन कहते हैं। कन्वर्जेंट मीन्स द एबिलिटी टू डिड्यूस ए सिंगल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। जब हम फोकस एक ही सॉल्यूशन पे करेंगे, सो दैट इज नोन एज convergent mode of thinking. Divergent mode of thinking is related to creativity, while as convergent mode of thinking is related to giftedness. नेट और सेट में इसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस पोज किए जाते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग में हम सिंगल सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक डॉक्टर किसी का मेडिकल रिपोर्ट देखता है तो वो कहता है कि इस पर्सन की जो डेथ हो चुकी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लंग कैंसर, और लंग कैंसर का सिर्फ एक ही कॉज है, दैट इज स्मोकिंग। सो इट मीन्स दैट सिंगल solution of the problem which is in the form of lung cancer, or we can say that cause is smoking. फोकस हम सिर्फ एक ही चीज पे यहां पर करते हैं। इसी तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस बच्चे को पूछे जाते हैं, तो 4 ऑप्शंस में से वो एक ही को सिलेक्ट करता है। दैट कम्स अंडर द कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग। नंबर 6, इवैल्यूएशन। डियर स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन इज द लास्ट intellectual operation performed by our brain. Evaluation is that ability to determine whether a piece of particular information is correct, reliable, or trustworthy. It is the highest intellectual operation in which we check whether an individual has received correct or incorrect information. For instance, knowledge and understanding about different animals and plants, or simply knowledge about different subjects. यानी कि इवैल्यूएशन जो है ये हाईएस्ट मेंटल ऑपरेशन माना जाता है। इस ऑपरेशन में हम इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस, हम बच्चे को डॉग की इमेज दिखाते हैं। अब बच्चा जो है वो इस पे मेंटल ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन यूज करता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज अबाउट द डॉग। बच्चे में डॉग की नॉलेज है कि नहीं, तो ये इवैल्यूएशन के जरिए हमें पता चल जाएगा। अगर बच्चे ने इस डॉग को डॉग कहा तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सही है। अगर अब बच्चे ने डॉग को कैट कहा, कैट को डॉग कहा, तो हम कह सकते हैं उसके पास इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो नटशल में हम कह सकते हैं इवैल्यूएशन इज दैट कॉग्निटिव ऑपरेशन जिसमें हम इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, ये रिलायबल है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, ये करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की नॉलेज ही नहीं, बल्कि हम चेक करते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हमने बच्चे को एडिशन की साइन दिखाई, वो एडिशन की साइन को एडिशन की साइन कहना चाहिए, वो उसे सब्ट्रैक्शन नहीं कहना चाहिए। अगर हमने सब्ट्रैक्शन दिखाई, वो सब्ट्रैक्शन की साइन को सब्ट्रैक्शन ही कहना चाहिए। सो इट मीन्स दैट इन इवैल्यूएशन वी चेक whether the individual has correctly received the information or not, या उसके पास इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन तो मत है। नाउ लास्ट, प्रोडक्ट डायमेंशंस, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट डायमेंशन? प्रोडक्ट सिंपली मीन्स व्हेन वी परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट कंटेंट्स दैट लीड्स towards the end results, and end results are in the form of products. जब तक कि कंटेंट नहीं है तब तक हम मेंटल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और जब कंटेंट है हम कंटेंट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं वी गेट द एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, कीपिंग इन व्यू द गुलिफोर्ड्स SIO मॉडल।
अगर हम अब गुलिफोर्ड के SIO मॉडल से देखेंगे, देयर आर 6 प्रोडक्ट्स involved in the cube shaped model. Now one by one we will discuss 6 intellectual products. Number 1, units. Unit simply means single item of knowledge. For example, plant, animal, etc. Unit कुछ भी नहीं है, it is merely the single item of the knowledge. हमारे पास जब एक आइटम ऑफ नॉलेज होगा, दैट कम्स अंडर द यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज अबाउट प्लांट, ये मैंगो प्लांट भी हो सकता है, एप्पल प्लांट भी हो सकता है, वॉलनट ट्री भी हो सकता है, विलो ट्री भी हो सकता है, पॉपुलर ट्री भी हो सकता है, या और वेराइटीज ऑफ ट्रीज. तो एक प्लांट जो है ये सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है. इसी तरह से एनिमल्स के बारे में एक एनिमल जो है दैट इज सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, काउ, गोट, डॉग, एटसेट्रा. नाउ आफ्टर द यूनिट, सेकंड इज क्लास. व्हाट इज क्लास और क्लासेस? व्हेन वी कंबाइन द डिफरेंट यूनिट्स, जब हम यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, दैट मेक्स ए क्लास. एंड क्लासेस शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज. क्लासेस के दरमियान एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज अबाउट प्लांट किंगडम, नॉलेज अबाउट एनिमल किंगडम. प्लांट किंगडम में तमाम प्लांट्स आ जाएंगे, चाहे वो फल वाले प्लांट्स है, चाहे वो बिना फल वाले प्लांट्स है, चाहे वो विलो ट्री है, चाहे वो पॉपुलर ट्री है, चाहे वो मैंगो ट्री है, लेकिन सब प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे. मैंगो ट्री में एक किस्म का फ्रूट होता है, एप्पल ट्री में दूसरे किस्म का फ्रूट होता है, विलो ट्री और पॉपुलर ट्री जो है वो बिना फ्रूट के होते हैं, या वॉलनट ट्री जो है उसमें ड्राई फ्रूट होता है. लेकिन फिर भी हम सबको एक ही क्लास में रखते हैं, बिकॉज ऑल दीज प्लांट्स शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज. और कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करने के बेस पे हम इन्हें एक ही क्लास में रखते हैं. लाइक जो तमाम ये ट्रीज है, इनमें स्टेप है, रूट्स है, शूट्स है, फोटोसिंथेसिस होती है. ऑन द बेस ऑफ दीज, आई मीन टू से यू प्रॉपर्टीज, वी पुट ऑल द प्लांट्स और ट्रीज इन सिमिलर क्लास. नंबर 3, रिलेशंस. Dear students, relation simply describes connection between two items of information. जब हम 2 items of information के दरमियान एक relation देखते हैं या connection देखते हैं, that comes in the domain of relations. For example, how apple tree is related to walnut tree. किस तरह से apple tree जो है वो relate करता है walnut tree के साथ, क्योंकि both the trees gives fruit. एक फ्रेश फ्रूट देता है, दूसरा ड्राई फ्रूट देता है. दोनों जो फ्रूट है वो सेहत के लिए अच्छे हैं, जिनमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर both apple tree and walnut tree, these are the fruit bearing trees. इसी तरह से willow and poplar tree. Willow tree is related to the popular tree. क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट इनमें होती है? क्योंकि विलो ट्री भी जो है वो फ्रूट बेयरिंग नहीं है, पॉपुलर ट्री भी जो है वो फ्रूट बेयरिंग नहीं है. इस तरह से हम कहते हैं कि इनमें एक रिलेशनशिप है. और दोनों जो ट्रीज है उनकी जो वुड है वो हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन पर्पजेस, लाइक फ्यूल पर्पजेस, लाइक और कोई पर्पज होगा. तो दिस कम्स इन द रिलेशनशिप्स. नंबर 4, systems. Dear students, system describes multiple relationships. System complex होता है, इसमें multiple relationships हम देखते हैं. Means how one thing is not only interconnected to one another, but also how one thing is
interconnected as well as interdependent to one another. यहां पर हम interdependence देखते हैं. It is broader as compared to the relationships. Always systems broader होते हैं relationships से. तो हम nutshell में कह सकते हैं system is the networking of relationships which simply denotes relation as well as interdependence. For example, concept of food chain. अगर हमें फूड चेन को समझना है, जैसे कि सनलाइट के बगैर ग्रास ग्रो नहीं हो सकता है, क्योंकि वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए सनलाइट जरूरी है. और जो ये ग्रास है, इट इज ईटन बाय द ग्रास हूपर, क्योंकि ग्रास हूपर की एग्जिस्टेंस ग्रास पे है. ग्रास हूपर ईट्स द ग्रास, और ग्रास हूपर इज ईटन बाय द फ्रॉग. ग्रास हूपर को फ्रॉग खाता है, क्योंकि फ्रॉग की एग्जिस्टेंस ग्रास हूपर पे है. एंड फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, क्योंकि स्नेक की एग्जिस्टेंस जो है दैट इज ऑन टू द फ्रॉग. और स्नेक इज ईटन बाय द ईगल. ईगल जो है वो स्नेक को खाती है. और फाइनली जब ईगल की डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद वहां पर ग्रो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगे. तो इस तरीके से हम फूड चेन को समझ सकते हैं, या पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं. किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट्स, transformation simply means change in an item of information, transforming previously thought of idea into a new idea. यानी कि जब हम previous information को change करते हैं new information में, या नए तरीके से हम उसे present करते हैं, that comes in the transformation. Dear students, nutshell में हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हम अल्टरनेटिव मेथड्स यूज करते हैं सेम प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसे हल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करते थे मीटर से, नाउ इन प्लेस ऑफ मीटर वी विल चूज द अनदर मेजरिंग रॉड दैट इज स्टिक. हम अब मेजरमेंट स्टिक से लेंगे. इसी तरह से हम यूज करते थे लीटर एज ए मेजरिंग रॉड, चाहे हमें कोई भी लिक्विड मेजर करना है, मिल्क, वाटर, ऑयल एटसेट्रा. अब हम लीटर के बदले यानी कि लीटर को ट्रांसफर करते हैं किसमें? न्यू मेजरिंग रॉड में, दैट इज बोतल. इसी तरह से हम दरिया को क्रॉस करते थे विद द हेल्प ऑफ बोट. अब हम बोट के बदले और एक यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे या चीज का सहारा लेंगे, लाइक व्हीकल टायर. यानी कि टायर के जरिए हम अब वाटर को पार कर सकते हैं. सेम वे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि एक प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए टीचर ने पर्टिकुलर मेथड सिखाया है. नाउ बच्चा जो है वो इसी प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करता है. नंबर 6, implications. It means to find out the applicability of the knowledge. For example, is it possible to substitute a bottle for a liter and a stick for a meter as measuring rods? Dear students, implications में हम knowledge की applicability देखते हैं. क्या हम knowledge की applicability और usability ढूंढ पाते हैं कि नहीं? For example, हम लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करते थे विद द हेल्प ऑफ मीटर. अब हम स्टिक की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे. क्या स्टिक से हमें करेक्ट मेजरमेंट मिल सकती है? यह हमें लेंथ और ब्रेड्थ चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम मीटर को करते थे. इसी तरह से हम मेजर करते थे किस चीज से? लीटर से. लेकिन लीटर को हमने रिप्लेस किया बोतल में से. अब हमें बोतल की एप्लीकेबिलिटी देखनी है. क्या सच में बोतल जो है
वो हमें करेक्ट मेजरमेंट देती है, जैसे कि लीटर देता था। इसी तरह से हम किलोग्राम से वेट मेजर करते थे। किलोग्राम को हमने रिप्लेस किया यानी कि ब्रिक में। क्या ब्रिक सचमुच किलोग्राम के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? दिस कम्स इन, I mean to say you, implications where we check the applicability or usability of the knowledge. Dear students, this was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss another important theory which is based on information processing approach. और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है उस पे एक थ्योरी propound की one of the eminent psychologists, namely Sternberg. Sternberg की थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे. That theory is also known as triarchy theory of Sternberg. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.